Sorry. Okay. So we discussed organizational levels yesterday. Now we will see how to configure the organizational structure. Okay. So I just logged into in the server. Okay. So we are into client 800. Once you log in into client, then you perform the activities. So all the users who do their business tasks, day-to-day tasks, they log in into the server and they perform their tasks. So a user who is supposed to create a PO, he will create a PO. Those who are supposed to create PRs, they will create PRs. Those who are supposed to approve those documents, they approve it. So whatever day-to-day tasks they are supposed to do, they perform in this particular server. Okay. So when they start using it, to work SAP for them, we do this configuration settings first. Okay, at the time of implementation, and then the system is handed over to the business users for their use. So as we discussed yesterday, this organizational level needs to be created, needs to be mapped in the system first. That is the base. And then you map the processes one by one. Okay, so first we need to define the structure, and then the other processes we can configure in this particular system, or we can test in this particular system. Okay, so for an example, we are going to create a company code. Okay, let's name it as August 23. Okay, then we will create plants in this company code. We will create 2 plants. Then we will create 2 purchasing organizations. Then we will create storage locations. And then we will do the assignment. These are organizational levels to one another, and then our structure will complete, and then we will start posting transactions like creating purchase orders or creating goods receipts, invoice verification. All those transactions we can post in the company code that we are going to create today. Okay, so once I create this company codes entire thing, you do not log in into system now. You just have to understand how I am doing it. If you have any questions, then you can ask me. And once our class is over, then you have to create these company codes. So you will create your own company code, own plants, and own structure. And while doing this, if you get any questions, any doubts, then again you can ask me. Okay? Any doubt, any questions? No, sir. No. Sir, in the hierarchy of creating, you said create purchasing or organizations, 2 of them, and purchasing groups. पहले purchasing groups बनाना है फिर organization या फिर in the order that you have written? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? So you can create in any order. So there are 2 things, right? First is definition. First we will define these things: company code, plant, purchasing organization, purchasing group. And second is assignment. So first step that we are going to do is definition. Second thing is assignment. So when you define, you can define in any sequence. There is no issue. Okay. So definition,
You can do in any sequence, but assignment when you do, you need to do it properly. Okay, sir. Okay. Now, in SAP, as a functional consultant, we need to do this configuration settings. So the settings that we are going to do, or the structure that we are going to do, it comes under configuration settings. Configuration settings. Okay. To do this configuration settings, we use path SPRO. Okay. The transaction code that is used is SPRO. Now, transaction code. What is transaction code? So transaction codes, or in short, these are also called as T codes. Okay. These are commands used in SAP system. To perform भी tasks है business users के, yeah, as a consultant, whatever we want to check in the system or whatever we want to do in system, we need to use transaction code for that. So SPRO is a transaction code that is used for configuration settings. Now configuration settings, what is configuration setting? Configuration setting is nothing but for an example, in our mobile, in settings, we do some settings, right? And based on that setting, then your application behaves. For example, if it's dual SIM mobile, we go to settings, and in settings, while calling, we can make SIM 1 or SIM 2 as default SIM, or we we can tell system that every time I'm going to make a call, it should ask me whether I have to use SIM 1 or SIM 2. That is a setting. So you do a setting, and based on that, that calling application will behave. Similar way, in configuration settings, we create the organizational levels plus some other settings that can be used in the transactions. In transaction means while doing the purchase orders or while creating the purchase requisitions. So these configuration settings are made by the consultants. कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का एक्सेस बिजनेस यूजर्स के पास नहीं होता है. Okay, to do the configuration in system, the person who is supposed to do that, he must have the understanding of the impact of that configuration. वो जो भी configuration हम करने वाले हैं उसका impact system पे क्या होगा, ये जिसको मालूम है वही configuration setting कर सकता है. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Now I have logged into system. So system में login करने के बाद आपको ये screen दिखेगा. ठीक है? This is where you enter the commands. Okay, like SPRO. Okay. Customizing execute project. ये स्क्रीन आपको दिखेगा. इस स्क्रीन पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज SAP reference IMG. SAP reference IMG. IMG stands for implementation guide. Implementation guide. So whatever settings you are going to do as part of configurations, if you click here, these are the nodes, or this is the place where you do the settings, configuration settings.
ठीक है। तो MM मॉड्यूल, PP को मॉड्यूल, SD मॉड्यूल सबके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स SPRO में ही होते हैं, इसी स्क्रीन पे होते हैं, ठीक है। सो एज अ MM कंसल्टेंट you will be responsible for only the areas of materials management, and the access is also provided in the same way that you can perform only activities related to materials management. You will not be able to do the configurations of sales and distribution. Likewise, the accesses are also restricted in the system. Now, this is the place where you will do the configuration activities. Now here, this is called as implementation guide. So whatever implementation or new functionalities you are going to add as part of your business requirement, while doing that, this particular screen serves you as a guide. ये आपके लिए guide का काम करता है. For example, this enterprise structure, you see here this documentation. Just click on this documentation and you can see the documentation is available. ये enterprise structure, what is the meaning of enterprise structure is given here. So हर एक node पे जब आप click करते हो, this is called as a node. ठीक है, मैंने इसको expand किया, so this is called as a node. तो हर एक इस node पे आपको documentation available मिलेगा. For example, if you see definition, यहाँ पे आपको documentation मिलेगा. Definition में आपको आप क्या कर सकते हैं, assignment में आप क्या कर सकते हैं, what will be the impact. Okay, so in short, it tells you what is the purpose of this particular node. So in this section, you will learn how to portray the specific organizational structure of your business in the R3 system. ठीक है, to help you portray your company structure, different accounting, logistics and human resources organization units are provided. First, analyze the structures and procedures in your company and then match them to the SAP structures. These are various organization elements defined as examples in the standard version. Normally, these would not cover all your needs. Extend the element as required. So the basic structure is available readily here. You can use that, and as per your business requirement, as per your company's requirements, as per your client's requirements, you can modify the system. Okay. Now enterprise structure is the node under which we have definition and assignment. So the first thing that we should do is configure the enterprise structure. तो अगर enterprise structure को configure करना है तो SPRO में आने के बाद implementation IMG में enterprise structure, under enterprise structure you see the definition here. Click on definition here and definition will be expanded. Under definition you have different options here: financial accounting, controlling, logistics general, sales and distribution, materials management, plant maintenance, human resource management. So these are different functions used in a company. So as a materials management consultant, what you will do, we will use this materials management and logistics general. Okay, now I'll go step by step. So first thing we need to define is a company code. Okay, for example, if we have a company and we want to implement SAP for that company, the first thing that we need is to identify that into that company into our SAP system. We need to create a company code for that company. So company code is created in definition under financial accounting. Okay, here you can see multiple options. So in real time, when you start working as a consultant in your project team, along with you, there will be a FI consultant, finance and controlling consultant. So company code creation is a responsibility of finance consultant. You will not be creating company code in any of your assignment.
आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, एज ए MM कंसल्टेंट you will never create a company code. Okay, but we are going to learn how to create it. ठीक है, तो कंपनी कोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कंसल्टेंट. ही इज सपोज टू क्रिएट द कंपनी कोड. Why he is supposed to create the company code? Because at company code level, financial activities are carried out. So the settings related to financial accounting are supposed to be completed by finance consultant, because they know finance side better than us. We don't know the finance side, we don't know the accounting side, so that is not our territory. Finance consultant will create the company code. Clear? Any doubt? Yes. Yes or no? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. So finance consultant will create the company code, and once his company code configuration is complete, he will notify all other consultants in the team that company code creation is complete. You can do your respective configurations, and then we will create then plans, purchasing organization, purchasing group, storage location, etc. etc. Okay. So in real time, company code creation is the responsibility of finance consultant. Now, how to create a company code? So under definition, financial accounting, then you go to, here you have two options: define company and edit, copy, delete, check company code. So we need to use this edit, copy, delete, check company code option. We should not. Defining company is also okay, but what SAP suggests is you copy a company code from existing company code. Okay? The reason is SAP has given some standard company codes for each country. I guess in the yesterday only I told you that for each company code for each country SAP has given a standard company code that can be used with standard SAP settings. तो उस कंपनी कोड में जो SAP ने दिया हुआ है उसमें they have made sure that all the standard settings that are required to run the business are made in that particular company code. So when you copy the existing company code which is provided by SAP and create a new company code, all the standard settings that are required for a company code will be automatically copied from the existing company code to new company code. So there will not be any missing settings when you create a new company code by copying the existing company code. If you define a company code, there is a chance that you may miss some settings. That's the reason SAP recommends to copy existing company code and create a new company code, as well as whenever you are creating a plant, you copy existing plant and create a new plant, because these two organizational elements are very important: company code and plant. So when you copy company code, you should copy the existing company code, and when you copy the plant, you should copy the existing plant and create new one. So what happens when the copy function works? It updates all the required tables in the database in which the entry of plant and company code is necessary, so that when you start using that company code in your transactions, like creating PO, creating PR, or posting goods receipt, posting invoice, or any business transaction, we will not face any issues. We will not get any errors that the particular setting is missing. But if we define the company, we will get so many errors, because we are human. We don't remember each and every setting, and we don't know exactly which table will have the company code entry. That's the reason SAP recommends us, or SAP tells us, to use
an existing company code and copy it to create a new company code. ठीक है? So click on this edit, copy, delete, check option. ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ आइडल टाइम दिया रहता है सिस्टम को, ठीक है? ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब 5 मिनट 10 मिनट अगर आप आइडल हो, मतलब यू आर नॉट पोस्टिंग एनी ट्रांजैक्शन, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली लॉग यू ऑफ. ठीक है? SPRO, रेफरेंस IMG, enterprise structure. Under enterprise structure, definition, under definition you have financial accounting, expand it, edit, copy, delete, check company code, execute it. And here you see two options: copy, delete, check company code, and init company code data. So double click on copy, delete, check company code, the first option, and you see the screen, organizational object company code. This is where we create a new company code. So click on this copy function, copy org object. Once you click on copy org object, you can see here at the bottom there was a message 90% table reads, 64% table reads. So system start reading the tables in which the company codes entry is required. So from company code and to company code. Okay, so in from company code we can select SAP standard company codes. I told you for India it's 4300. Okay, Bangalore INR. बेस्ट रन इंडिया इसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? किसी ने तो डिस्क्रिप्शन हटा दिया है. So you can copy this, or I have created a company code here that I'll copy, and you can copy that company code. Okay. Okay, AGCO. Why I am selecting this company code? This is created by me by copying 4300. ठीक है? So हमने 4300 को कॉपी किया तो भी चलेगा, we copy AGCO तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. The thing is we should copy a existing company code. Now to company code is the new company code that we are going to create. So what should be the name of our new company code? ठीक है? Okay, AG23 I'm going to use as a company code. ठीक है? To new company code AG23, that will be the company code that we will be using. Okay, so यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लिक ऑन कंटिन्यू. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर कंपनी कोड AG23 आपने सिलेक्ट किया तो उसके जगह आप कैसा कोड ले सकते हैं? मतलब You can take any 4 character code. If you have decided any name to your company, you can, for example, कोई भी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल कोटेन इंडिया. सर अगर ये जो हम नया कंपनी कोड डाल रहे हैं अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो एरर थ्रो करेगा? करेक्ट, थ्रो करेगा. करेक्ट, ठीक है? सो इफ आई सिलेक्ट हियर कैंसल कॉपी org object from company code AGCO to company code 4300, continue. ठीक है? Data already exists company code 4300 for the to org object. Do you want the org complete object? Do you want to proceed? Because already 4300 exists. Okay, so system wants you.
इट विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। तो यहाँ पे हमने AGCO को सिलेक्ट किया, टू कंपनी कोड में मैंने AG23 डाला। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन यूज एनी 4 कैरेक्टर कोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम अगर Dream11 है, यू कैन यूज DRM1 or DR01, DR11 or whatever you want to, or you can simply use 4 numbers, 2111, 2222 या 1111, 1000, 2000, 3000, 4000, 9999, 8888, 7777, whatever you want to use you can use, ठीक है, clear? Yes, sir. But it should be 4 character. Click on continue. Now once you continue, system is asking us, system is giving this pop-up message, only copy the GL accounts if you want to allocate the same chart of accounts to the target company code as to the source company code. Now there is a new term called as chart of accounts. What are chart of accounts? कोई फाइनेंस का बंदा है तो उसको मालूम रहेगा क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। Chart of accounts is list of general ledger accounts used in company. Okay, so list of general ledger accounts used in company. What are general ledger accounts? Ledger accounts are the accounts that are used in balance sheet. ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स यूज होते हैं उसको हम जनरल लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। तो कंपनी का जो भी इनकमिंग मनी है या आउटगोइंग मनी है, दोज आर ट्रैक्ड इन अकाउंट्स, those are called as general ledger accounts. So this particular pop-up is telling us we are copying a company code and creating a new company code. So it is asking us, do you want to copy the general ledger accounts associated with the old company code to new company code? जिस कंपनी कोड को हम कॉपी करके नया कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम उस ओल्ड कंपनी कोड को जो GL अकाउंट्स असाइंड है वही कॉपी करना चाहते हैं या न्यू अकाउंट्स यू वांट टू क्रिएट। ओके, अभी हम लोग फाइनेंस के कंसल्टेंट तो है नहीं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कॉपी द एग्जिस्टिंग GL अकाउंट डेटा टू द न्यू कंपनी कोड डेटा। सो वी डोंट हैव टू क्रिएट द जनरल लेजर अकाउंट्स और वी डोंट हैव टू क्रिएट द न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द finance consultant. So here what you have to select, do you want to copy the GL account company code data? Yes, ठीक है, clear? सर ये GL अकाउंट का डेटा भी आएगा कि उसका जो सिर्फ सेटिंग्स है वो आएगा? डेटा भी आएगा, मतलब अकाउंट्स भी आएंगे। बट यू डोंट नीड दैट नो टू, We need it. like, We need it because when we post the goods receipt, there will be posting through general ledger account. नो सर, बट अगर हमने ये जो कॉपी किया है वो टाटा से किया है, बट हम बना कोई सुजुकी के लिए रहे हैं, तो ये टाटा वाले के इंफॉर्मेशन उसमें नहीं चाहिए, राइट? लेजर का got it. ठीक है, you are thinking from that point of view. Okay, now आपने दो कंपनी का नाम लिया, एक टाटा और दूसरा कौन सा लिया, सुजुकी, ठीक है। तो सुजुकी के सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हो SAP सिस्टम पे, तो उसमें टाटा का डेटा नहीं रहेगा। ओके, क्लियर? ओके सर, ओके सर। ओके, सो व्हेन द सिस्टम इज प्रोवाइडेड, सिस्टम इज फ्रेश, ठीक है। उसमें 4300 कंपनी कोड स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें स्टैंडर्ड सेटिंग है, कोई भी कंपनी उसको कॉपी करके अपने GL अकाउंट्स का डेटा वहां पे मेंटेन कर सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हम टेस्ट सर्वर का यूज कर रहे हैं। दिस इज अ सर्वर फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस, तो यू कैन कॉपी एग्जिस्टिंग डेटा एंड यूज इट। बट अगर आप कंपनी में जाते हो तो हर एक कंपनी के GL का डेटा ऑब्वियसली अलग रहेगा, उनके GL अकाउंट्स अलग रहेंगे। एंड when you are working for any client, only
that client's companies will be accessible to you. उसका ही डेटा उसमें रहेगा. टाटा का डेटा सुजुकी की कंपनी में कैसे एक्सेस होगा? नहीं होगा ना. It will not be Yes, there. sir. ठीक है. So do you want to copy the GL company code data? Click on S. Now the reference company code has local currency INR. If you allocate a different local currency to the target company code, GL accounts with currency INR also changed. Now we are copying a company code and creating a new company code. So the old company code has currency INR. Okay. Since at company code level the transactions are posted, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग होता है, वो कंपनी कोड लेवल पे होता है. तो जिस भी कंट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उस कंट्री का करेंसी कंपनी कोड को असाइन होता है. वी विल सी इट इन सम टाइम. तो जो भी कंपनी कोड रहेगा उस कंपनी कोड को करेंसी असाइन होता है. तो जिस कंपनी कोड को अभी हम कॉपी कर रहे हैं उसका करेंसी INR है. जो नया कंपनी कोड हम क्रिएट कर रहे हैं उसका करेंसी भी आपको INR ही चाहिए या कोई और चाहिए, इज व्हाट सिस्टम इज आस्किंग. We want INR only. Okay, so we will select here no, because do you want to allocate a different local currency to target company code? We will select no. अगर आप कंपनी कोड किसी कंट्री के लिए बना रहे हो, किसी अदर कंट्री के इसके लिए बना रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग फॉर यूएस क्लाइंट, ठीक है, और यूएस में रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, उसका आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो द फाइनेंस कंसल्टेंट व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी कोड, when he copies the company code which belongs to India, and from copying that he wants to create a company code for US, he will change the currency from INR to USD. But in this case, we will not change it. Clear? Understood? Yes, sir. यस सर. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ना. Certain data was not copied. No problem. Click on continue. Transport number ranges and addresses. Now number ranges क्या होते हैं? So whenever we create any document or master data, जैसे हमने PR बनाया या परचेस ऑर्डर बनाया, तो हर एक परचेस ऑर्डर को एक यूनिक नंबर असाइन होता है. तो वो नंबर असाइन करने के लिए एक नंबर रेंज हम सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, उसको हम नंबर रेंज बोलते हैं. ये आगे आएगा. तो नंबर रेंजेस आर नेवर ट्रांसपोर्टेड. नंबर रेंज एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, वो हमको हर एक क्लाइंट में मेंटेन होते हैं. सो व्हेन द नंबर रेंजेस कम, then I'll explain you what exactly is the number range. So here you just have to click on continue. Do you really want to transport number ranges? If you select no, that is also fine. If you select yes, that is also fine. Generally the number ranges are not transported, so you should select here no. And now you see here 25%, 39, 42, 45, 50, 60, 70, 80, 96%, 99%. टेबल कॉपीड. तो सिस्टम जब ये कॉपी फंक्शन करता है तो ओल्ड कंपनी कोड का डेटा जो जो टेबल्स में मेंटेन है सिस्टम में, वो सारे टेबल्स में नए कंपनी कोड को सिस्टम अपडेट कर देता है. दैट इज व्हाई वी यूज द कॉपी फंक्शन. नाउ हियर यू सी a request number is created, DPKK 900963. It's a request number and its description is customizing request. Now what is this customizing request? Copy it. I'll note down here, we will discuss it later. Okay, now here अगर पॉपअप में डायरेक्ट रिक्वेस्ट आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा कंटिन्यू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Otherwise you need to create your own request. Click on this create request. Here you can give the description, company code AG23
और ऑगस्ट ट्रेनिंग बैच मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। रियल टाइम सिस्टम में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सो यू नीड टू प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन टू द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. This is also called as transport request. So many new terminologies are coming in. Don't worry, you will understand each and everything as the time passes. Okay. So this is called as ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. तो हर एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. तो हर कंपनी आपको जब भी जो आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहां पे जो फॉर्मेट यूज करना है इसके नेमिंग के लिए वो आपको बताया जाएगा. एंड व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग अ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट you need to use your description in that particular format. तो ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे रियल टाइम कंपनी में प्रोजेक्ट्स भी क्रिएटेड होते हैं. ठीक है. सो हर एक प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. वंस यू सिलेक्ट हियर यू सी अ टारगेट सिस्टम. ठीक है. तो यहाँ पे टारगेट भी आपको स्पेसिफाई करना होता है. टारगेट सिस्टम सोर्स क्लाइंट 800 है. टारगेट क्या है? So these configuration activities are not done in production system directly. Production system में ये नहीं होता है. तो ये आप पहले डेवलपमेंट सिस्टम में करते हो, उसको टेस्ट करते हो, फिर क्वालिटी सिस्टम में ले जाते हो, वहां पे टेस्ट करते हो एंड फिर वो प्रोडक्शन सिस्टम में जाता है. ठीक है. तो वो भी हम बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे एक टारगेट भी स्पेसिफाइड करना पड़ता है. यहाँ पे ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा. दिस इज अ प्रैक्टिस सर्वर. यहाँ पे टारगेट देने की जरूरत नहीं है. You can simply click on save. So when you save it, a new request number is assigned. ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट. ठीक है. तो ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, दैट वी विल सी लेटर. क्लिक ऑन कंटिन्यू. सर जो ये टारगेट वाला फील्ड है उसमें उसको खाली छोड़ना है क्या? यस. कंपनी कोड AGCO copied to AG23. क्लिक ऑन कंटिन्यू. कंप्लीटेड एक्टिविटीज में आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी कोड AGCO copied to AG23. It means your company code AG23 is created. Now go back and on this screen you see edit company code data. Double click here. Now here you see all the existing company codes created in this particular server. इस सर्वर में प्रैक्टिस के लिए जो भी लोगों ने क्रिएट किए हुए कंपनी कोड्स है वो सारे कंपनी कोड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. Now once you come on to this screen you need to search the company code that is created by you. तो यहाँ पे click on position. यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करना है. इट विल आस्क यू कंपनी कोड. एंटर हियर AG23. क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड नाउ यू सी हियर AG23 एंड AGCO. तो हमने AGCO को कॉपी करके AG23 को क्रिएट किया था. तो AGCO का जो कंपनी कोड का नाम है वो भी इसको कॉपी हुआ है. ठीक है. दैट वी नीड टू चेंज नाउ. सो आई एम सिलेक्टिंग हियर AG23. क्लिक ऑन दिस लेंस आइकॉन डिटेल्स. And here you see the details are copied from AGCO company to AG23 company code. अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस. ठीक है. Here you see the currency is assigned to company code. इसका करेंसी क्या है वो करेंसी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं. INR है तो INR रहेगा. इस कंपनी कोड का लैंग्वेज क्या है, तो ये कंपनी कोड जिस कंट्री के लिए है उस कंट्री का लैंग्वेज यहाँ पे आ सकता है. या बिजनेस ट्रांजेक्शंस अगर वो इंग्लिश में डाल रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश रहेगा. ठीक है. सो टू एंटर द एड्रेस डिटेल्स ऑफ द कंपनी यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एड्रेस ऑप्शन. क्लिक हियर एंड यू सी दिस address pop-up is open. Now on title you can see company name. Here you need to change the name of company. So what name?
Any name you can give. Okay, so I'll just make it generic. August Training Company code. Because when I search, it becomes difficult. कुछ दिनों बाद वो भूल जाते हैं हम कंपनी का नाम क्या था या कंपनी कोड क्या था, तो डिस्क्रिप्शन से एटलीस्ट पता चलेगा. ठीक है. So I'm giving the name of the company is August Training Company code. You can give any name. आप टाटा मोटर्स ले सकते हो. आपका खुद का अगर आपने कोई सोचा हुआ है तो you can enter that name. No problem with that. Search term. जब आप इस कंपनी कोड को सर्च करना चाहते हो बाद में, तो उसके लिए अगर कोई यूनिक आइडेंटिफायर अगर आपको देना है, यूनिक नेम आपको देना है जो आप रिमेम्बर कर सकते हो while searching, that you can give here. So that will help you in searching the company code letter. Okay. Then street and house, here you can see the street address. तो जो कंपनी है, हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है. कंपनी जब रजिस्टर होता है तो उसका एड्रेस उनको देना पड़ता है. दैट एड्रेस इज स्पेसिफाइड हियर. ठीक है. तो स्ट्रीट हाउस नंबर, पोस्टल सिटी कोड, सिटी कौन सा है, ठीक है, यू कैन ऐड हियर. कंट्री यू कैन ऐड, रीजन, सो स्टेट्स इन आवर कंट्री आर मार्क्ड एज रीजन हियर. तो हर एक कंट्री, जैसे यूएस में जाओगे वहां पे भी रीजन्स है, तो रीजन्स वहां पे जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं वो स्टेट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. टाइम जोन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. देन योर पीओ बॉक्स नंबर, पोस्टल कोड. तो ये क्या है, उस कंपनी के एड्रेस की डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. क्लियर? एनी डाउट? तो जिस भी कंपनी का जो रीजन कोड होगा वो वहाँ पे एंटर करना, जैसे कि यूएसए का क्लाइंट है, चाइना का क्लाइंट है. करेक्ट करेक्ट. तो उसका जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पे आएगा. कंट्री वहाँ का आएगा, यूएस का होगा तो यूएस का आएगा, चाइना का होगा तो चाइना का आएगा, रीजन अकॉर्डिंगली आएगा, टाइम जोन भी उनके हिसाब से आएगा. ठीक है. मोबाइल नंबर, फैक्स डिटेल्स, ईमेल डिटेल्स, ऑल दिस डेटा इज फील्ड. ठीक है. क्लियर? अभी यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल चीजें हैं. तो आई जस्ट क्लिक ऑन चेक हियर एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू. अभी यहाँ से ये जो नेम है कॉपी कर लेता हूँ एंड यू नीड टू पेस्ट द नेम हियर ऑल्सो. ओके. सिर्फ यहाँ पे अपडेट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं होता, तो यहाँ पे भी हमको वो कॉपी करना पड़ेगा. ठीक है. एंड देन यू सेव इट. Click on continue. मामा कड़े जाता हूँ. ठीक है. Saved it. Now go back and you can see the name is changed. Understood? Any doubt here? तो हमने क्या किया, एड्रेस में जाके एड्रेस के डिटेल्स चेंज किए. ये सेम जो नेम है ये आपको कॉपी करके यहाँ नेम में डालना है, कंपनी नेम में, एंड यू नीड टू सेव इट एंड योर कंपनी कोड इज रेडी नाउ, AG23. यस. एनी डाउट? एनी बेट? सर एड्रेस में जाके प्रीव्यू का भी ऑप्शन था, तो बाद में वो देख सकते हैं क्या प्रीव्यू करके? हाँ देख सकते हैं ना. यू कैन सी हियर प्रिंट प्रीव्यू. ठीक है. तो कंपनी का जब एड्रेस प्रिंट होगा तो ऐसे प्रिंट होगा. सो दिस प्रीव्यू इज फॉर प्रिंटिंग. जहां कहीं पे भी एड्रेस प्रिंट होगा वो ऐसे प्रिंट होगा. ठीक है. यस सर. So we created a company code. Now we will create plant. So again, you need to go to enterprise structure definition. Now you need to go to logistics general, because all the logistics related activities are carried out under plant. So plant is placed under logistics general. Here you see
define, copy, delete, check plant. Click on this. Again, you have two options: define plant, copy, delete, check plant. So we will not define plant, we will copy, delete, check plant. Double click on copy, delete, check plant. Click on copy. Now here, what we need to do? Give a existing plant number and copy to new plant code. तो existing plant जो उस कंपनी कोड में है वो AGP1 और AGP2 दो प्लांट है, उसमें से मैं AGP1 को कॉपी कर रहा हूँ टू न्यू प्लांट। तो नए प्लांट के अपने नाम्स क्या होने हैं? तो न्यू प्लांट्स वी विल क्रिएट एज AP10 and AP11. ओके, प्लांट कोड्स के नाम मैं AP10 और AP11 दे रहा हूँ, या फिर अगस्त बैच 10 या AP10 कर देता हूँ। AP10 and AP11, anything you can use. Again, वो ऑलरेडी यूज नहीं हुआ होना चाहिए, इट शुड बी यूनिक। AP10, क्लिक ऑन कंटिन्यू। डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा हो, वी कैनॉट यूज इट। क्लिक ऑन कॉपी AGP। ये launch August PA11. Okay, click on continue. Do you want to really transport the number ranges? Click on no. Okay. Click on continue. ठीक है, सो प्लान सर ये जो रिक्वेस्ट नंबर है, दिस इज स्पेसिफिक टू हु क्रिएटेड इट, वो पता लगाने के लिए। यस यस यस, कौन से यूजर ने वो किया, वो वहां पे ये हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो प्लांट PA11 is created. So I come here, I'll update here as PA11 and the other plant we will create as PA12. ठीक है, I'll go back. Now again I'll go to define plant to change the address of the plant. So here you will select PA11. ये जो डिस्क्रिप्शन है वो जिस प्लांट को हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आया था। Select this, go to details. Again you can come here and change the address of the plant. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्लांट का एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल पुणे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, you give the address here, search term, okay, यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल पिंपरी चिंचवड। एड्रेस आप जो भी उस पर्टिकुलर प्लांट का एड्रेस, नाउ दिस एड्रेस इज प्लांट एड्रेस, तो प्लांट जहाँ पे फिजिकली है आपका, वो प्लांट का एड्रेस यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस? क्योंकि क्या पर्पस होगा यहाँ पे एड्रेस देने का प्लांट का? To know that these are two different locations. That is one thing. Okay. Second thing is all your activities are carried out at plant level. For example, you are selling goods to customer, you sell it from plant. If you are manufacturing something, you manufacture in your plant. If you are receiving materials from vendor, you receive in your plant, right?
So when you are placing a purchase order to the supplier, he must know where he has to deliver the goods. So to deliver the goods, he must know the delivery address. So that delivery address is copied from plant. तो यहाँ पे जो एड्रेस होता है ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है. जैसे एग्जांपल हमने देखा कि पीओ में डिलीवरी एड्रेस हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट विल बी ऑफ द प्लांट. तो इस लोकेशन पे वो मटेरियल आना चाहिए. तो जब परचेस ऑर्डर प्रिंट होता है तो उसमें जो एड्रेस लिया जाता है वो प्लांट का एड्रेस लिया जाता है. क्लियर? ठीक है. सर अगर हमने पीए जैसे पीए 11 में जो एड्रेस डाला तो वो पीए 12 में गलती से अगर सेम लिख दो तो वो लेगा या नहीं लेगा? बिकॉज नाइस क्वेश्चन. वो ले सकता है. ठीक है. द रीजन इज ये टेक्स्ट फील्ड है. ठीक है. अगर कोई वैलिडेशन लगाया है, सिस्टम चेक करता है तो वो नहीं लेगा, या सिस्टम आपको वार्निंग भी दे सकता है कि ये एड्रेस ऑलरेडी है. ठीक है. देखते हैं, अपन ट्राई करके देखते हैं. PA12 जब क्रिएट करेंगे तो उसमें सेम एड्रेस के साथ हम सेम ट्राई करते हैं. ठीक है. एंड वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. क्योंकि सी कंट्री इंडिया है, रीजन 13 है. ठीक है. अगर मैंने मुंबई का लेना है, अच्छा, तो यहाँ पे पोस्टल कोड भी वही आएगा. ठीक है. देखते हैं. इट विल नॉट थ्रो एरर, ले सकता है. ठीक है. यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन डालना है, कॉपी किया, state, enter. And one more thing that is important here in plant definition is factory calendar. What is factory calendar? What is factory calendar? You see here factory calendar IN. So factory calendar is a calendar that records work days and holidays of that particular plant. वो प्लांट पूरे साल में कितने दिन वर्किंग रहेगा, कितने दिन हॉलीडेज रहेंगे, that is specified in the factory calendar and it is assigned to plant because आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, एक्टिविटीज होने वाला है सब प्लांट लेवल पे होने वाला है. तो सिस्टम, देयर विल बी फंक्शंस वेयर सिस्टम यूजेस डेट्स. जैसे हमने पीओ निकाला तो पीओ में हम डिलीवरी डेट देते हैं कि इस डेट को हमको ये मटेरियल चाहिए. अगर वो डे संडे है तो सिस्टम हमको वार्न करता है कि इस डे को हॉलीडे है, प्लांट बंद रहेगा, यू शुड सिलेक्ट अनदर. क्लियर? ठीक है. So factory calendar is an important thing that is assigned in plant. इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि फैक्ट्री कैलेंडर में आप क्या सेटिंग, सॉरी प्लांट में आप क्या एंटर करते हो. तो इंटरव्यूअर को जो आंसर चाहिए वो फैक्ट्री कैलेंडर. एड्रेस डिटेल्स तो होंगे ही, कंट्री की होता है, रीजन होता है, एड्रेस डिटेल्स होते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट फैक्ट्री कैलेंडर इज एन इंपॉर्टेंट field that we maintain in the plant. Sir, clear? Any question in plant? Yes. सर आप टॉपिक के जैसे कि आपने अभी बताया कि इंटरव्यू ऐसा पूछ सकते. हेलो. हाँ. यस. हेलो. हेलो. सर अभी आपने जैसा कि सर आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है. जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यूअर ऐसा पूछ सकता है फैक्ट्री कैलेंडर में क्या आ सकता है, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप टॉपिक टू टॉपिक ऐसा बताओगे ना सर कि ऐसा लेक्चर लेते समय कि इंटरव्यू पूछ सकते हैं जैसा कि हम नोट कर सके. बता तो रहा हूँ. हर टॉपिक पे जो भी इंटरव्यू पे क्वेश्चंस रहेंगे आई विल बी टेलिंग यू. जब भी पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, और जब चैप्टर खत्म होगा तभी बताऊंगा. ठीक है. एंड आई शेयर यू
list of questions that can be asked in interview. I have ready it. Okay, मेरे पास एक document है that I will share with you. तो थैंक यू। सर इसकी बात चल रही है तो आई आस्क अनदर क्वेश्चन। ये जितनी भी मैं जॉब्स देख रही हूँ लोकली, कोई भी सिर्फ SAP MM का जॉब नहीं है। SAP MM/WM या QM ऐसे पूछ रहे हैं। तो सिर्फ ये वाला कोर्स करने से जॉब मिलेगा कि डू आई हैव टू have add another module to this? Because locally कोई भी jobs दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ SAP Understood. MM related। अंडरस्टूड, ठीक है। वो जो होता है, जो जॉब पोस्टिंग होता है, वो बेसिकली एक्सपीरियंस को कंसिडर करके होता है, ठीक है। इफ दे आर लुकिंग फॉर समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years और 7 years, ठीक है, दे कैन एक्सपेक्ट कि आपको मटेरियल मैनेजमेंट के साथ कोई और मॉड्यूल पे आपने काम किया है ना। ये जो WM QM वो एक के साथ, मतलब MM के साथ WM QM ये जो देते हैं, द रीजन इज ये WM QM दीज आर वेरी स्मॉल मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर आपको MM में जॉब मिला और वहां पे अगर QM या WM है तो आपको ये बोला जाएगा कि आपको उस पर काम करना है। नाउ देयर यू कैन लर्न दैट। वो कोई बड़े मॉड्यूल्स नहीं है, वो छोटे मॉड्यूल्स हैं, आप 8-10 दिन में भी उसको सीख सकते हो। वंस यू लर्न वन मॉड्यूल इन SAP, इट इज वेरी इजी टू लर्न अनदर मॉड्यूल, बिकॉज आपने एक मॉड्यूल लर्न किया तो आपको पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे चलता है। नाउ ऑल अदर मॉड्यूल्स विल बी सेम, उसमें सिर्फ बिजनेस प्रोसेस अलग होगी। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी रिलेटेड प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। तो वहां पे जो बिजनेस प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको सिस्टम मॉडिफाई करना है। तो एक बार आपको सिस्टम को मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या बात होता है, वो SPRO में कैसे किया जाता है, SPRO में किया तो ट्रांजेक्शन में कैसे अफेक्ट करता है, वो आपने सीख लिया तो वो सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड कंपनी का क्या है, अगर आपको 2 मॉड्यूल आते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं आते हैं, इवन इफ यू नो 2 नहीं, आपको 4 मॉड्यूल्स आते हैं, आप गए वहां पे, आप क्या अकेले 4 मॉड्यूल्स का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये गुड टू हैव होता है, ठीक है। जैसे अभी प्रोजेक्ट पे हमारा टीम है पूरा, बट उसमें QM का कंसल्टेंट नहीं है, तो आपको QM आता है तो आप वो प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत उसका काम कर लोगे तो वो चल जाता है, ठीक है। तो अलग से एक कंपनी को रिसोर्स हायर करने की जरूरत नहीं है, उसको पे करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे जो इंटेंशन होता है वो होता है। या फिर कोई जूनियर रिसोर्स आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप इसको गाइड कर लो, ये QM का काम करेगा, क्यों? बिकॉज आपके पास अकेले के पास MM में इतना काम रहेगा कि आप दूसरे मॉड्यूल का काम कर ही नहीं सकते, आया तो भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक आदमी 4 आदमी का काम नहीं कर सकता है। कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या है, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि एक ही रिसोर्स से ज्यादा काम करके ले, तो उनका जो रिसोर्स हायरिंग का है वो बच जाता है। दे लुक फ्रॉम अ सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सर तो अगर आपके कोई पास कोई इन हाउस प्रोजेक्ट अगर होगा लाइव तो प्लीज हेल्प करना कि हम देखें एक बारी कैसे क्या नहीं, काम सी होता है। मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे प्रोजेक्ट में क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको कवर अप कर लूंगा, ठीक है। कितने टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट पे काम कैसे कर रहे हैं, इंसिडेंट्स कैसे आते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है कि इन सपोर्ट प्रोजेक्ट व्हाट एक्टिविटीज यू डू एज अ कंसल्टेंट, ठीक है। तो रियल टाइम में कैसे होता है वो मैं आपको, मेरा कंपनी का जो लैपटॉप है उस पर एक दिन सेशन लेके मैं आपको बता दूंगा, एक दो, ये 2 दिन हो या 3 दिन हो, कि मतलब कैसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कैसे हम उस पर काम करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आई विल कवर, ठीक है। बट प्रोजेक्ट की जो आप बात कर रहे हो, मतलब जो जैसे IT में होता है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको दे दिया, आप बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है। तो दैट थिंग वी आर डूइंग इट राइट नाउ। कंपनी क्रिएट कर रहे हैं हम, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मैप दी प्रोसेसेस इन दैट पर्टिकुलर कंपनी कोड। तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लियर। यही एक्टिविटीज प्रोजेक्ट में होती है। जैसे अभी सपोज करो कि एक नया प्लांट, कंपनी ने एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खड़ा कर दिया, एग्जिस्टिंग उनके पास SAP है, दे आर यूजिंग SAP। ना उन्होंने एक नया प्लांट सेटअप कर लिया एंड दे वांट टू सेटअप दैट प्लांट इन SAP।
उनको उस प्लांट को एसएपी में लाना है। मतलब वहां पे जो भी एक्टिविटीज होंगी परचेसिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड या इन्वेंटरी रिलेटेड, वो सारा उनको एसएपी में करना है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट a new company code for that, sorry, new plant for that, and assign it to existing company code. कंपनी मेरा वही है, एक नया प्लांट हो रहा है, ठीक है, तो मैंने एक नया प्लांट क्रिएट किया। एंड देन फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस है, जैसे परचेस ऑर्डर है तो उसमें कौन से पीओज हैं, लाइक सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, कंसाइनमेंट है, उसके हिसाब से वो प्रोसेस हम मैप करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सी, कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है, हम सबको मालूम है। कंपनी 100 चीजें उसमें लिखता है, बट रियलिटी में वैसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या है, आपका इंटरव्यू लेने वाला जो है उसको पता होता है कि आपको कौन सी चीज पे काम करना है, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है, आप उसमें क्या काम करने वाले होते हो। तो जब आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अभी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ एसएपी में, यू कैन गो एज अ फ्रेशर, बट फ्रेशर के लिए ओपनिंग्स बहुत कम होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस है 3 4 2 साल 2 साल एक्सपीरियंस है, you put that experience as a SAP support consultant. क्या होता है, कैसे हैंडल होता है, all those things I'll cover up so that you can easily answer the questions. और जॉब करने के बाद बोलोगे सर 4 साल का एक्सपीरियंस लगाया, फिर प्रोजेक्ट पे गया, आपने मुझे कोई प्रोजेक्ट दे दिया और बोल दिया कि अकेले से कर लो, ऐसा नहीं होता है। 4 साल तक के जो कंसल्टेंट है उनको एज गुड एज फ्रेशर से थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है, ठीक है, तो इतना दिक्कत नहीं आता है, यू कैन इजीली सर्वाइव अगर आपने अच्छे से ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करी तो। इतना डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, प्रैक्टिस इट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। Now we will create one more plant. कहाँ जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही जाना है वापस। डेफिनेशन, लॉजिस्टिक्स जनरल, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, कॉपी डिलीट चेक प्लांट, कॉपी नाउ, एक मिनट, हाँ, ठीक है। Now you can copy the plant that we created, AP11, and we can create AP12. Click on continue. AP12 is already there, so we cannot use it. PA11, right? So we will copy it, PA11 to PA12. Click on continue. Continue. No. Click on continue. Now again, I'm saving everything in the same request. ठीक है, तो अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं या एक ही रिक्वेस्ट में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्लिक ऑन कंटिन्यू। PA12, okay, is created. Now go back, go to define plant. PA12. Now here again, you can change the description of the plant. Go to address. Check it. Now, फैक्ट्री कैलेंडर्स प्लांट के अलग अलग हो सकते हैं या सेम ही होने चाहिए?
अलग अलग हो सकते हैं सर, पॉसिबिलिटी इज देयर, ठीक है। बिकॉज प्लांट कैन बी इन हॉलीडेज अलग अलग हैं, करेक्ट। लोकेशन अलग हो सकता है, जैसे अभी एक प्लांट चेन्नई में है और एक प्लांट सपोज महाराष्ट्र में है, तो देयर विल बी सम holidays, festivals which will be followed in Kerala but not in Maharashtra, right? तो वहां पे हॉलीडे हो सकता है बट यहाँ पे नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से फैक्ट्री कैलेंडर प्लांट के अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी हमने एक कंपाइलिंग कोड क्रिएट किया और दो प्लांट्स को क्रिएट किया, PA11 एंड PA12। okay. Now we will create storage locations. So for storage locations, now you go to materials management. Here you see maintain purchasing organization and maintain storage location. So storage locations and purchasing organizations are placed under node materials management. Click on maintain storage locations and you see as soon as you click on maintain storage location, system is asking you plant, for which plant you want to create the storage location, because storage locations are inside the plant, right? Clear? Storage locations are plant specific, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको प्लांट डालना पड़ेगा कि जो स्टोरेज लोकेशन में क्रिएट करने जा रहा हूँ वो कौन से प्लांट के लिए क्रिएट करना जा रहा है। तो यहीं पे प्लांट और स्टोरेज लोकेशन का असाइनमेंट या मैपिंग हो जाता है। AP11 मैंने प्लांट डाला, क्लिक ऑन कंटिन्यू and you see some storage locations are already there, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000. Now tell me ये कहां से आए? हमने तो क्रिएट नहीं किया, because we copied it from the other. करेक्ट, ठीक है। So these storage locations we copied a plant from AGP1. So in AGP1 these are the storage locations which are created, that automatically got copied to our new plant. Now here what you can do is you can delete and create your own storage locations. I am going to copy this क्योंकि मैं यही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। I will just show you how to add new storage locations, ठीक है। Now you can select all, ये जो है यहाँ पे आइकॉन, इट इज फॉर सिलेक्टिंग ऑल, और एक एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो सामने ये जो प्लेस है यहाँ पे आपको सिर्फ कर्सर लेके प्रेस करना है, ठीक है। यू सिलेक्ट ऑल दिस एंट्रीज, हियर यू सी द ऑप्शन टू डिलीट, क्लिक ऑन दिस डिलीट, कंटिन्यू। नाउ द एग्जिस्टिंग स्टोरेज लोकेशंस आर डिलीटेड। ये तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप सेव नहीं करोगे। तो आपने सिर्फ डिलीट कर दिया और न्यू ऐड कर दिए, नहीं चलेगा। फर्स्ट you need to save it. So every time you do any change in the configuration, system will prompt you this customizing request pop-up, and you need to either select an existing request or create a new request. Okay, now that change is saved means the storage locations are deleted. Now you can add new storage locations here. Click on new entries and you can add here new storage location, ठीक है। आपको जो भी नाम उसका देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ इन रियल टाइम these storage location numbers and their descriptions are provided by business teams. हम उनको बोलते हैं कि आपको सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट कर पाएंगे, they give you all these details कि उनको नाम नोमेनक्लेचर क्या यूज करना है स्टोरेज लोकेशंस के लिए, उनके डिस्क्रिप्शंस क्या यूज करने हैं, ठीक है। they provide us and then you save it. आपको कुछ न्यू डालना है, AG01 you can enter here, yeah, KP01 which location and you save it. This is how you create the storage locations, and now you see plant AP11 has this storage locations. तो इनका मैपिंग यहीं पे हो जाता है, इनका असाइनमेंट यहीं पे हो जाता है।
So when you create the storage location, you create it for a plant. So by default, they are assigned to a plant. You don't have to do a separate assignment. Clear? Any doubt, any questions? ठीक है. Now, कल मुझे किसी ने तो एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरा अगर वेयर हाउस प्लांट के बाहर है या कोई स्टोरेज लोकेशन मेरा प्लांट के बाहर है तो क्या. ठीक है. अभी यहाँ पे AP11 में मैंने इतने स्टोरेज लोकेशंस क्रिएट किए. ठीक है. अभी सपोज करो ये जो है मेरा एक वेयर हाउस है. Okay, and this is not inside my plant. This is at a different place from my plant. प्लांट से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है. ठीक है. इसको मैंने SAP में क्या किया, सिस्टम में एज अ स्टोरेज लोकेशन क्रिएट किया. नाउ अगर मुझे कुछ मटेरियल सप्लायर से इस स्टोरेज लोकेशन में चाहिए तो उसका एड्रेस मेरे प्लांट के एड्रेस से अलग है. सो यू कैन मेंटेन एड्रेस फॉर स्टोरेज लोकेशन एज वेल. स्टोरेज लोकेशन के लिए भी हम एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं अगर हमारा स्टोरेज लोकेशन प्लांट फिजिकली प्लांट में नहीं है तो. सो यू कैन सिलेक्ट दिस स्टोरेज लोकेशन, क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन. ठीक है. यहाँ पे आपको एक नया एंट्री ऐड करना है. जस्ट गिव एनी नंबर हियर and enter, and system will ask you to enter the address of the storage location. So here you can see, you can select here warehouse near Pune plant. यहाँ पे अगेन उसका एड्रेस आएगा. क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लिक ऑन चेक, कंटिन्यू, and you can save it. Yes, clear? Any doubt in storage location? Yes or no? सर वहाँ पे इस एड्रेस फिल करने के बाद में वो बताएगा कि वो अपने स्टोर के बाहर, कंपनी के बाहर है वेयर हाउस. नहीं, एड्रेस स्टोर करने से नहीं बताएगा. ठीक है. ये अंडरस्टूड है कि ये कंपनी के बाहर है. ठीक है. सिस्टम में ऐसा कोई सेटिंग नहीं है कि ये कंपनी के बाहर है. बट जब भी आप इस स्टोरेज लोकेशन का यूज करोगे तो वहां पे एड्रेस जो है इस स्टोरेज लोकेशन का आएगा. क्लियर? सर अगर वो जो वेयर हाउस है वो बड़ा है, ओके, और उसमें 5 लोकेशन और क्रिएट करने हैं उस वेयर हाउस के अंदर ही, तो okay. फिर ये कैसे उसको ये करेंगे? सी, अगर वेयर हाउस बड़ा है और उसमें आपको 5 स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करने हैं तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करने पड़ेंगे. ठीक है. अनलेस यू आर क्रिएटिंग दैट वेयर हाउस एज अ प्लांट. अगर आपने उस वेयर हाउस को अलग से प्लांट क्रिएट किया तो उस प्लांट में अलग स्टोरेज लोकेशन आप क्रिएट कर सकते हो. बट अगर उसके लिए आपने प्लांट नहीं डिफाइन किया है, अगर आपको उसमें वैल्यूएशन ट्रैक नहीं करना है उस इन्वेंटरी का वेयर हाउस में जो है उसका, तो आप सिंपली यहाँ पे 5 स्टोरेज लोकेशन ऐड कर सकते हो. वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल वेयर हाउस है, उसमें स्टोरेज लोकेशन 1000 है. उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे AP01 क्रिएट किया. फिर यू विल ऐड अ न्यू स्टोरेज लोकेशन AP02 वेयर हाउस 2000 लाइकवाइज. ठीक है. मीन्स ये इसके जो प्लांट है उसको ही असाइन रहेगा. सी, द थिंग इज, आपको उस वेयर हाउस को अलग से प्लांट ट्रीट करना है या स्टोरेज लोकेशन ट्रीट करना है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. If you are tracking the value in that particular warehouse, then you must have to create it as a separate plant. You cannot create it as a warehouse. The warehouse is nothing but storage location for us when we talk about materials management. ठीक है. यस सर, ओके. Save it.
Now again click on maintain storage location, enter the plant AP12, continue, copied from AP11, save it. I'm not going to change anything here. तो हमने दो प्लांट क्रिएट किए, उसमें हमने स्टोरेज लोकेशंस क्रिएट किए. स्टोरेज लोकेशंस आर प्लांट स्पेसिफिक. तो देखो दोनों स्टोरेज लोकेशन, दोनों प्लांट में स्टोरेज लोकेशन के नंबर्स हमने सेम यूज किए हैं. वहां पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है. System allows you to use same storage location numbers to different plants because these are plant specific. तो जब भी स्टोरेज लोकेशन का यूज होता है वो प्लांट के साथ ही होता है, अकेले स्टोरेज लोकेशन कहीं पे भी यूज नहीं होता है. That's the reason you can use same storage locations with plant because the combination of storage location and plant is used whenever you use it. So it becomes unique. Click on maintain purchasing organization. Okay, here we just have to create our purchasing organization. यहाँ पे मतलब कॉपी फंक्शन नहीं है जैसे हमने वहां पे यूज किया था. ये सिर्फ ये सिंगल टेबल है जहाँ पे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का हमको एंट्री करना होता है. यू कैन क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, मेंटेन हियर परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल AG00 is already there. I'll create or A100. Okay, I'll create A100 as a purchasing organization and I'll give the name as material procurement. I'll create one more purchasing organization A200. I'll give this name as service procurement. If I want to create one more, I can create here and give the name as imports procurement. तो हमने कल देखा था कि परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निगोशिएटिंग डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस विद द वेंडर. और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन उसका परचेस हेड या जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, हाउ दे वांट टू ट्रैक द स्पेंड, बेस्ड ऑन दैट द परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्रिएटेड. तो यहाँ पे मैंने तीन लिए हैं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, सर्विस प्रोक्योरमेंट एंड इंपोर्ट्स प्रोक्योरमेंट. तो अगर मैं कोई मटेरियल या सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ, बाहर की कंट्री से ले रहा हूँ, तो उस केस में आई विल यूज दिस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन A300. तो जो भी परचेसिंग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो A30 परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनेंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बाइफरकेटिंग माय स्पेंड्स. मैं मेरा जो स्पेंड होने वाला है उसको परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बाइफरकेट कर रहा हूँ, सेग्रीगेट कर रहा हूँ, सो दैट आई विल हैव विजिबिलिटी कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट कितना हुआ, सर्विस प्रोक्योरमेंट कितना हुआ या इंपोर्ट्स प्रोक्योरमेंट कितना हुआ, बेस्ड ऑन दी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक भी किया तो भी चल जाएगा, अलग अलग किया तो भी चल जाता है. इट अगेन डिपेंड्स ऑन द बिजनेस डिसीजन. बिजनेस का परचेसिंग कैसे वर्क होता है उसके ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि हमको कितने परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने हैं. तो हमने अभी कंपनी कोड को क्रिएट किया, प्लांट को क्रिएट किया, स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट किया, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया. नाउ क्या बचा? परचेसिंग ग्रुप. द परचेसिंग ग्रुप इज नॉट इन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इट इज प्लेस्ड इन मटेरियल मैनेजमेंट. यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, जस्ट एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना. लेट मी क्रिएट द परचेसिंग ग्रुप, देन यू कैन आस्क. ओके, सो परचेसिंग ग्रुप जो है इट इज प्लेस्ड अंडर मटेरियल मैनेजमेंट, नॉट इन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. तो आपको क्या करना है, यहाँ से मटेरियल्स मैनेजमेंट में आना है, एक्सपांड इट. हियर यू कैन सी परचेसिंग, inside purchasing you can see here create purchasing groups, execute it, and here you can create the purchasing groups. Click on new entries, enter a name for your purchasing group, for example AG1. ठीक है, AG1 raw material buyer. इनका कोई टेलीफोन नंबर होगा या फैक्स नंबर होगा, आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो. सेव इट एंड अ परचेसिंग ग्रुप इज क्रिएटेड.
You create another purchasing group with AG2, service procurement buyer, AG3, electrical buyers. तो ये जो है आई एम गिविंग दिस नेमिंग टू अंडरस्टैंड यू पीपल. तो कंपनी में रियल टाइम में इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग भी हो सकता है उनके हिसाब से, उस कंपनी के नीड के हिसाब से, उनके परचेसिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से. दे विल प्रोवाइड कि इसके कोर्स क्या क्रिएट करना है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए. ये जो होता है ये जोन्स पे भी डिपेंड करता है. जैसे कोई कंपनी बड़ी है, उनका बिजनेस ऑल ओवर द ग्लोब है और उनका परचेसिंग कहीं पे सेंट्रल जगह से हो रहा है या फिर अलग अलग जोन से हो रहा है, तो हर एक जोन के लिए वो क्या करते हैं, एक परचेसिंग ग्रुप क्रिएट करते हैं. लाइक दिस. यस, क्या था क्वेश्चन? सो दिस इज हाउ टू क्रिएट द परचेसिंग ग्रुप. यस, तो जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया तो उसे यस, टेल मी. काय होता प्रश्न? सॉरी, मी माझं थोडं लक्ष नव्हतं. ये जो हमने परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है उसको हमने कंपनी कोड से लिंक किया है क्या, असाइन किया अभी है तक उसे? नहीं किया, अभी तक नहीं किया. हमने सिर्फ अभी क्रिएट किया कंपनी कोड को, प्लांट को, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को, परचेसिंग ग्रुप को हमने सिर्फ अभी क्रिएट किया. असाइनमेंट अभी बाकी है.